हे गाइस व्हाट्स अप। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीकेजी डेक्स्टर्स जोन। तो गाइस आज हम करने जा रहे हैं अपना डीकेजी पीआरटी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। डे नंबर 3 है हमारी सीरीज का और हम चैप्टर कर रहे थे मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन लॉ का। ठीक है, थर्ड वीडियो है हमारी ये उससे रिलेटेड। सो बिफोर गोइंग इनटू डिटेल, I would like to make you understand about the weightage of the syllabus basically कि कितना पोर्शन हमारा कितने मार्क्स का है। तो फॉर दिस आई नीड टू go to here. So just go onto the website of ICAI, and there you will find of course study material of corporate and other laws paper number second. And that is basically the study material which is applicable for May 2020 examination onward. That means this one will be applicable for November examination also, right? So this is the categorization of syllabus. So guys, this whole syllabus has been divided into two part first and part second. One is for company law and other is for other laws, right? That is part second. So we need to understand the weightage. Of course, company law alone carries the weightage of 60 marks. That is of utmost important, and you can understand 60 marks are required for getting exemption, of course. So this is the easiest part as well, because in second part you have to basically learn three whole new laws, and another chapter is of course related to some rules or statute of interpretations, so that we will talk later. Now our focus will remain on part first, that is related to company law. And before proceeding, I would like to uh, show you this portion of study material as well, that is initial pages. So just have a look what is given. So this is part first, as you can see over here, carries 60 marks, and part second, that is other laws, carries 40 marks, which comprises of course three act, whole new act, Indian Contract Act, and Negotiable Instrument Act, and General Clauses Act, right? So, and of course fourth chapter is interpretation of statute. So here we are talking about company law. So in company law itself, how many chapters are given? Just have a look in your syllabus. And yes guys, so just look at this module first comprises company law portion, and module second of your study material carries these four chapters that we have already discussed, three act, and one is the chapter related to interpretation of statutes. So interesting thing over here is here from chapter 1 to chapter 10, chapter 1 to chapter 10 are the chapters of what? Are the chapters of Companies Act. Companies Act 2013. Companies Act 2013. What we have studied? We have studied that there are 29 chapters. Let me tell you, there are 29 chapters that we have already discussed. We discussed in our first video that Companies Act 2013 has 29 chapters. Whole Companies Act is divided into 29 chapters, and here you have to study 10 chapters. Out of those 29 chapters, you have to study 10 chapters. So these chapters are basically the chapters of Companies Act. Of course, by default, these numbers have been assigned in your booklet also. But chapter number 1, of course, Companies Act में भी preliminary है. Chapter number 2, Incorporation of Companies and Matter Incidental, there too है. जब आप बेयर एक्ट लोगे ना, बेयर एक्ट में ये चैप्टर नंबर जो है बिल्कुल पढ़े हुए मिलेंगे आपको, और उसके अंदर जो कवर अप होगा, जैसे चैप्टर नंबर 10 तो ऑडिट एंड
ऑडिटर्स का रहेगा, चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स का रहेगा, चैप्टर नंबर 8 आपका डिक्लेरेशन का रहेगा, चैप्टर नंबर 7 जो रहेगा डिक्लेरेशन ऑफ एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, 7 जो हम अभी कर रहे हैं मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप यू गॉट कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ये चैप्टर जो है आपके किसके हैं, चैप्टर आपके कंपनीज एक्ट के हैं, ठीक है। अब हमने डिस्कस किया था कि कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शन है हमारे, टोटल सेक्शन है हमारे 470 हमारे सेक्शन है। और अगर हम जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि हमें टोटल जो चैप्टर पढ़ने हैं वो 10 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से 7 नंबर चैप्टर अभी हम कर रहे हैं, है ना। अब इसमें 10 जो चैप्टर हैं इसमें 470 टोटल सेक्शन है। तो यहां तक पता है कितने सेक्शन कवर होते हैं, 148, जो आप अपने सिलेबस में देखते हो। तो 148 सेक्शन तक हमें पढ़ने हैं, जो हमारे ऑडिट एंड ऑडिटर्स में कवर हो रहा है। तो आई होप ये समझ गए होंगे कि हमें क्यों 148 तक पढ़ना है, क्योंकि हमारे में 29 में से केवल 10 चैप्टर ही कवर हैं, 470 में से केवल 148 सेक्शन ही कवर हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 10 तक 148 सेक्शन ही आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। चलो, अब हमारा मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट चल रहा था, जिसके अंदर हमने काफी कुछ कवर अप किया था। तो काफी कुछ कवर अप किया था, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा था कि सेक्शन की रेंज जो थी हमारी सेक्शन 80 से 8 से लेकर के 122 तक सेक्शन जाते थे हमारे, ठीक है। और अगर आप इनको फर्दर कैटेगराइजेशन करना चाहो, अभी बताऊंगा, हालांकि हमने क्या क्या लर्न कर लिया रिकैप कराऊंगा, बट अगर आप इसको फर्दर कैटेगराइजेशन करना चाहो तो हम इनको ना 4 ब्रॉड कैटेगरी में बांट सकते हो आप। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4। मतलब ये हम अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं, इनको क्लासीफाई कर रहे हैं। या फिर हाँ, 1 नंबर कैटेगरी में आप रजिस्टर रख लो। रजिस्टर्स हम पढ़ेंगे, रजिस्टर्स के बारे में, जिसमें हम सेक्शन 88 से लेकर के 91 तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्शन ये आप लिख सकते हो क्योंकि आपको इजी रहेगा। अगला है हमारा AR, दैट इज एनुअल रिटर्न। बेसिकली सेक्शन जो इसका इंपॉर्टेंट है वो 92 है, बट इसी से रिलेटेड ये तो याद ही रखना, एनुअल रिटर्न हमेशा 92 सेक्शन में आती है, हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। MGT 7 इसका फॉर्म होता है, MGT 7 हम पढ़ेंगे। 92 से लेकर जो है इसके 94 तक जाते हैं, क्योंकि ये भी इसी से रिलेटेड है, 2 सेक्शन 93 एंड 94, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे मीटिंग्स के प्रोविजन जो हम पढ़ रहे हैं, मीटिंग्स पढ़ रहे हैं ना हम, मीटिंग्स के जो है सेक्शन हमारे जाएंगे बेसिकली 96 से लेकर के जाएंगे हमारे, और कहाँ तक जाएंगे, 102 तक जाएंगे। अब आप सोच रहे होगे 91 कहाँ चला गया, सॉरी 95 का चला गया 94 के बाद। तो गाइज 95 हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है, तो 95 हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब इसके बाद हमारा 4th सेक्शन बचा। 4th सेक्शन में क्या आएगा, इसको हमने अदर्स का नाम दे दिया, बाकी सारी चीजें जो हैं इससे आएंगे। बेसिकली मीटिंग्स की अदर थिंग्स हैं वो यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, जैसे कि हमें पता है 103 में हम कोरम पढ़ रहे थे, है ना। तो 103 से लेकर के 121 तक के सेक्शन जो है वो यहाँ पर आएंगे एंड 120 तक, सॉरी 120 तक, ठीक है। एंड बाकी 120, 21 क्यों नहीं लिखा मैंने, मैं बताऊंगा अभी। बाकी 122 नंबर का सेक्शन भी यहाँ पर आएगा। ये बेसिकली बात करता है कि ओपीसी पर इस चैप्टर का कौन कौन सा पोर्शन एप्लीकेबल होगा और कौन सा नहीं होगा, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर 121 सेक्शन भी इसी से रिलेटेड है, मीटिंग से, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। तो आई होप ये समझ आया होगा, ये आप अच्छे से नोट कर लें अपनी कॉपी में। जब मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा तो मैं अच्छे से वहाँ पे लिखूंगा, बट स्टिल आप अपनी वर्किंग कर लें कि 4 पोर्शन में हमने डिवाइड कर दिया इसको। पहले पोर्शन में हमने रजिस्टर्स को डिवाइड कर दिया, दूसरे पोर्शन में हमने AR एनुअल रिटर्न को डिवाइड कर दिया, तीसरे पोर्शन में हमने मीटिंग को डिवाइड कर दिया, और चौथे में हमने अदर कर दिया। यहाँ पर हमारा 88 से लेकर के 91 तक, फिर 92 से 94 तक, 96 से 102 तक एंड 103 से 10। तो हम ये वाला तो डिस्कस कर चुके हैं गाइस, ये डिस्कस कर चुके हैं कि नहीं कर चुके, कैसे कर चुके हैं हम अभी डिस्कस करते हैं। इसको छोड़ के है ना, इसको छोड़ के ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। कैसे, चलो अभी बताता हूँ। देखो हमने क्या डिस्कस किया था गाइस, हमने ये डिस्कस किया था, एक बार रिकैप करो फटाफट से। 96 में क्या आता है, AGM आती है। 99 100 क्या था,
100 इमरजेंसी का नंबर होता है, मतलब इमरजेंसी मीटिंग मतलब ईजीएम होती है ना। अब अगर आपने ये नहीं की है एज पर प्रोविजन 96, तो ट्रिब्यूनल के पास पावर है, पीओटी पढ़ा था, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल किसकी, एजीएम को बुलाने की, कौन से सेक्शन में थी ये, 97 में थी। और अगर आपने मेंबर्स की मीटिंग नहीं बुलाई तो ट्रिब्यूनल के पास पावर है मीटिंग बुलाने की 98 सेक्शन के अंदर। और अगर आपने ना तो ये फॉलो किया, ना ये फॉलो किया, ना ये फॉलो किया, ना ये, तो पावर है ट्रिब्यूनल की पनिशमेंट देने की सेक्शन 99 के अंदर। सेक्शन 99 में वो आपको क्या करेगी, डायरेक्शन सुना देगी, पनिशमेंट देगी अगर आपने डिफॉल्ट किया इन चारों सेक्शंस के अंदर। तो इन चारों सेक्शन में अगर डिफॉल्ट किया तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगी, पेनल्टी हो जाएगी। तो 100 तक तो हमने यहाँ पर ही कवर अप कर लिए थे। फिर हमने बात करी थी 101 की। 101 में हमने देखा था नोटिस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। 101 में हमने क्या पढ़ा था, नोटिस के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, कुछ याद है, बताओ भाई। नोटिस ऑफ द मीटिंग। फिर हमने 102 बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ा था, याद है नहीं याद है। इसमें हमने बिजनेस के बारे में पढ़ा था, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस, ये मैं अच्छे से बता चुका हूँ। 4 ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं हमारे, ठीक है ना, ये मैं ऑलरेडी अच्छे से समझा चुका हूँ। स्पेशल बिजनेस के बारे में भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी साथ में बताया था मैंने, जो इसी सेक्शन में दिया हुआ है ना। नाउ फिर 103 में हमने क्या पढ़ा था, चेयरमैन के सॉरी कोरम के बारे में पढ़ा था। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ए वैलिड मीटिंग। उसके बाद हमने 104 में क्या पढ़ा था, चेयरमैन के बारे में पढ़ा था। 4 से चेयर बताया था, 4 पाए होते हैं उसमें चेयरमैन, ऐसे याद रखोगे। कैसे चेयरमैन अपॉइंट होता है, पहले बताया था कि वो अपने में बाई शो ऑफ हैंड जो है अपने आप में से किसी को इलेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर किसी ने पोल की मांग की है तो पोल की मांग को इमीडिएट जो है पूरा किया जाएगा। और उस पोल को जो कंडक्ट कराएगा, सुपरवाइज करेगा, वो बेसिकली पुराना वाला चेयरमैन ही करेगा जो बाई शो ऑफ हैंड के थ्रू इलेक्ट हुआ है। और अगर पोल के रिजल्ट से कोई दूसरा चेयरमैन अपॉइंट हो जाता है तो रेस्ट ऑफ द मीटिंग के लिए चेयरमैन वो रहेगा। अगर वही फिर से अपॉइंट इलेक्ट हो जाता है जो बाई शो ऑफ हैंड के द्वारा इलेक्ट किया गया था, तो फिर ऑफ कोर्स पहले भी वही था तो बाद में भी वही रहेगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 105 प्रॉक्सी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्रॉक्सी में क्या था, हमने देखा था प्रॉक्सी एक वो पर्सन है जो किसी दूसरे पर्सन की जगह पर, यानी कि किसी शेयर होल्डर की जगह पर मीटिंग अटेंड करने पहुंच जाता है ना। तो प्रॉक्सी में हमने देखा था प्रॉक्सी के कुछ राइट देखे थे हमने, और प्रॉक्सी की हमने कुछ रेस्ट्रिक्शंस देखी थी। प्रॉक्सी क्या क्या कर सकता है, पोल के द्वारा वोटिंग कर सकता है, ठीक है। कोरम में उसको काउंट नहीं किया जाएगा, रेस्ट्रिक्शन थी। मीटिंग में वो बोल नहीं सकता, ठीक है। और बाई शो ऑफ हैंड के थ्रू भी वोटिंग नहीं कर सकता। इसके बाद हमने बात की थी कि प्रॉक्सी का MGT11 एक फॉर्म होता है, ये जरूर जाएगा जो वहां पर प्रिस्क्राइब टाइम में रजिस्टर्ड ऑफिस पे डिपॉजिट कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर प्रॉक्सी ने वोटिंग कर दी है और एक्चुअल मेंबर आ गया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वोटिंग नहीं की है उसने तो एक्चुअल मेंबर के आने पर ही प्रॉक्सी जो है क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये सब गाइस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सो ये आपने पुरानी वीडियो में अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब हम इससे आगे की बात करते हैं। अब हम बेसिकली वोटिंग की बात करेंगे गाइस। वोटिंग में ध्यान से देखो क्या क्या होगा। वोटिंग के अंदर हम 106 पढ़ेंगे, इसमें रेस्ट्रिक्शंस दे रखी हैं कुछ, क्या रेस्ट्रिक्शंस है उसके ऊपर बात करेंगे। 107 ये बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, साथ साथ बताया, मतलब साथ साथ हाथ उठाना है, मतलब वोटिंग बाई शो ऑफ हैंड, वोटिंग बाई शो ऑफ हैंड, है ना। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद 108 हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से अगर हम कर रहे हैं 108, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू हम वोटिंग कर रहे हैं तो 108 में होगा। 109 ये भी बताया था मैंने कि अगर इससे भी नहीं कर रहे मतलब इससे करेंगे, यानी कि डिमांड फॉर पोल,
अगर पोल के थ्रू वोटिंग कर रहे हैं तो नो, मतलब ऊपर वाले मेथड को नो बोल दिया और डिमांड फॉर पोल कर दिया, पोल के थ्रू वोटिंग होगी। ये हमने डिस्कस किया था। और एक और तरीका है वोटिंग का 110, दैट इज पोस्टल बैलेट। इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। तो ये वोटिंग के तरीके हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि क्या हो रहा है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेस्ट्रिक्शंस का, कि क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं जो हमें कंपनीज एक्ट के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। तो चलो चलते हैं, ये देखते हैं 106 में सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है आपको, रेस्ट्रिक्शन दी गई है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस है ना, ये रेस्ट्रिक्शंस एक्सप्रेसली आर्टिकल में प्रोवाइड की जानी चाहिए। कंपनी के आर्टिकल में एक्सप्रेसली पहली बार ये रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। अगर वहां पर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो कंपनी किसी भी मेंबर के ऊपर वोटिंग राइट एक्सरसाइज करने पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती। अगर आप रेस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हो तो सबसे पहली कंडीशन है कि आप आर्टिकल में ये पावर डालोगे कि वी मे इम्पोज दिस काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। नाउ इसके बाद ग्राउंड क्या है, किस ग्राउंड पे आप जो है रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हो। सबसे पहला तो या तो कोल्स हो, कॉल्स इन एरिया है, मतलब हमने कॉल मांगी और वो दे नहीं रहा है तो कॉल्स होनी चाहिए, या फिर अदर सम विच इज पेबल बाय द शेयर होल्डर, यानी कॉल्स हो या अदर सम हो विच इज पेबल बाय द शेयर होल्डर एंड विच हैज नॉट बीन पेड। ऑफ कोर्स अगर उसने है और पे कर दिए तब तो आप रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते ना भाई। आपको किसी का पैसा चाहिए, मतलब आपका पैसा किसी पे है, उस बंदे ने पे कर दिया, तब तो आप किसी चीज के लिए रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर पैसा है और उसने नहीं दिया तब आप रेस्ट्रिक्ट करोगे। तो ग्राउंड क्या हो गया, ग्राउंड जो हो गया वो कि कॉल्स है, अदर सम ऑफ मनी है और उसने पे नहीं किया है, ये हमारा ग्राउंड हो गया। और दूसरा, इसके ऊपर कंपनी ने बेसिकली राइट ऑफ लेन, इसके अलावा या तो ये हो गया एक ग्राउंड, या दूसरा ग्राउंड राइट ऑफ लेन। राइट ऑफ लेन को आप ऐसा समझ लो जैसे हमने टेलर को कपड़े दिए सिलने के लिए, तो टेलर के पास राइट है जब तक हमारे कपड़े ना देने का, जब तक हम उसके पैसे नहीं देते। यानी कि उसका जो राइट है वो लेन है, यानी कि वो कह देगा कि भैया जब तक आप मेरी सिलाई के पैसे नहीं दोगे, स्टिचिंग फीस नहीं दोगे, तब तक मैं आपके कपड़े नहीं दूंगा। दिस राइट इज बेसिकली सिमिलर टू राइट ऑफ लेन, ठीक है। बाकी जहां आएगा हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो राइट ऑफ लेन कर लिया है, अगर शेयर्स पे राइट ऑफ लेन कर लिया है किसने, कंपनी ने, तो दो चीजें हो गई, कॉल्स या अदर सम या राइट ऑफ लेन। इन चीजों पे ही केवल रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। इसके अलावा कंपनी कोई भी किसी भी ग्राउंड पे शेयर होल्डर पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती। ये बात क्लियरली समझ आई। आर्टिकल में आपको एक्सप्रेस पावर डालनी पड़ेगी और दोनों ग्राउंड में से एक ग्राउंड होना चाहिए, या तो कॉल्स आउटस्टैंडिंग हो उसके ऊपर जो नहीं दी है, या फिर कोई अदर सम आउटस्टैंडिंग है, या फिर कंपनी ने उसके शेयर पे किसी भी रीजन से लेन कर लिया है। तो these will be the ground for restricting the shareholder for the voting, right? है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई भी ग्राउंड ऐसा नहीं हो सकता जिसके बेसिस पे कंपनी रेस्ट्रिक्ट कर सकती है उसका वोटिंग राइट। नाउ अब बात करते हैं हम 107 की। 107 एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड। जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा तो ये सिंपलेस्ट तरीका है, जितने लोग हैं उनको बोल दिया जाए कि हमें, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि चेयरमैन अपॉइंट कर रहे हैं। बताओ ये राम नाम का पर्सन है, इसको हम चेयरमैन अपॉइंट कर रहे हैं, कितने लोग फेवर में हैं, बाय शो ऑफ हैंड बता देंगे। जितने लोग अपना हाथ खड़ा करेंगे उनको काउंट किया जाएगा, देखा जाएगा कि वो मेजोरिटी में है या नहीं है। मेजोरिटी में नहीं होंगे मतलब देखा जाएगा रेजोल्यूशन कौन सा पास हो रहा है। तो अगर हमें ओआर का देखना है तो फिर मेजोरिटी में होना चाहिए, एसआर का देखना है तो फिर हमें कौन सा होना चाहिए, 75% होना चाहिए। तो वो देख लिया जाएगा कि फेवरेबल पोजीशन है या अनफेवरेबल पोजीशन है। फेवरेबल होगी यानी कि वोट जो है जितने भी रिक्वायर्ड हैं अगर होंगे तो पास मान लिया जाएगा, और अदरवाइज उसको फेल मान लिया जाएगा। बट ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि जितने हैंड होंगे उतने ही वोट काउंट किया जाएगा, 1 पर्सन 1 वोट। ये बात ध्यान रखना, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल वन इज हैविंग, दैट यू नीड टू नोट, राइट। सो ये हो गया हमारा बाय शो ऑफ हैंड।
इलेक्ट्रॉनिक मीन्स वाला जो है ये सेक्शन हमारा बेसिकली बहुत बड़ा है, इसको हम चैप्टर के लास्ट में करेंगे क्योंकि इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी है थोड़ी कंफ्यूजिंग है, जो आपको मतलब समझ आएगी बट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, तो मैं चाहूँगा कि मैं इसको ना बाद में लूँगा क्योंकि इसके अंदर बहुत अलग अलग तरीके की जो आईटी वाला पेपर है उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। सो हम इसको पढ़ेंगे बट आप कंफ्यूज ना हो, एकदम क्लैरिटी रहे, इसके लिए मैं इसको बाद में लूँगा। नाउ अब हम आते हैं डिमांड फॉर पोल। डिमांड फॉर पोल की अगर हम बात करें भाई, अगर हमने सेक्शन नंबर 107 फॉलो नहीं किया है, सेक्शन नंबर 108 फॉलो नहीं किया है, तो हम वोटिंग बाई पोल कर सकते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि कैसे कैसे होगा। चलो आगे चलते हैं। तो 109 मतलब डिमांड फॉर पोल। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ये देखेंगे इसके अंदर कि ये जो डिमांड की जाएगी ये कब कब की जा सकती है, टाइमिंग के बारे में देखेंगे कि कब कब की जा सकती है, क्योंकि सबसे पहला तरीका तो बाई शो ऑफ हैंड है। तो इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि जो बाई शो ऑफ हैंड था वो कौन सा सेक्शन था हमारा, 107। तो 107 का अगर रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट, क्योंकि 22 हैंड तो आपने रेस कर दिए बट उसकी काउंटिंग होगी, उसके बाद उसको डिक्लेयर किया जाएगा। तो उस रिजल्ट के डिक्लेरेशन से पहले, बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ शो ऑफ हैंड या बाई शो ऑफ हैंड, SOH लिख देते हैं हम इसको, बाई शो ऑफ हैंड। इस इवेंट से पहले, यानी कि कर लिया हमने ये एक्सरसाइज कर लिया बट रिजल्ट नहीं आया, उसके डिक्लेरेशन से पहले हम पोल की डिमांड कर सकते हैं। एक बात तो ये हो गई। या डिक्लेयर हो रहा है, यानी हो गया एक तरीके से, उसके बाद भी हम पोल की डिमांड कर सकते हैं कि नहीं भाई मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, जो भी रिजल्ट आया बाई शो ऑफ हैंड के द्वारा मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे पोल चाहिए। अब बंदा अड़ गया कि भैया मेरे को तो पोल से ही करना है रिजल्ट, क्योंकि बंदे के पास कैपिटल है, कैपिटल जितनी ज्यादा है पेड अप उतनी वोटिंग राइट ज्यादा होगा, तो फिर उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कैपिटल उपिटल है नहीं और पोल के लिए क्या कर रहा है, जिद कर रहा है कि भैया पोल करा लो। तो उसके लिए कंपनीज एक्ट ने क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि भैया इतने आपके पास वोटिंग राइट होगा तभी, या फिर इतनी पेड अप कैपिटल आपने चुका रखी होगी, पे कर रखी होगी, तभी आप पोल डिमांड कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, है ना। अब यहां पर देखो, यहां पे बोला गया है कि दो तरीके की कंपनी बांट दी उन्होंने कि अगर हैविंग शेयर कैपिटल है कंपनी और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, यानी कंपनी में कैपिटल नहीं है ना। तो अगर हैविंग शेयर कैपिटल है तो इसके अंदर 1/10 मेंबर जो या तो पर्सन में प्रेजेंट है या बाई प्रॉक्सी, ठीक है, 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग राइट होल्ड कर रहे हैं, 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग राइट होल्ड कर रहे हैं, वो बंदे पोल के लिए डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर उस पर्सन ने कम से कम अभी के हिसाब से 5 लाख रुपए पेड अप शेयर कैपिटल के रूप में दे रखे हैं, एटलीस्ट, मतलब नोट लेस देन 5 लाख, मतलब एटलीस्ट 5 लाख हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, नोट लेस देन को एटलीस्ट 5 लाख जो है पेड अप शेयर कैपिटल के चुका रखे हैं, देन ओनली दिस पर्सन कैन डिमांड फॉर पोल। अगर इससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं हो डिमांड करने के लिए पोल में। और यहाँ पर चूंकि पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है, मतलब शेयर कैपिटल नहीं है, तो सिर्फ सीधा है 1/10 ऑफ द वोटिंग राइट, जिनके पास भी एनी नंबर ऑफ मेंबर जिनके पास 1/10 जो है, यानी टोटल 10% अगर हम बात करें वोटिंग राइट है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें तो अगर देखें उन्होंने बोला कि इतनी कैपिटल जो 1/10 ऑफ द टोटल का वोटिंग राइट कैरी कर रही है, इसलिए कैपिटल की बात है, वरना है टोटल वोटिंग राइट ही अगर हम बात करें जनरल शब्दों में। तो यानी कि आप डिमांड कर सकते हो पोल के लिए, लेकिन आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। ये हो गई एक दूसरी बात, है ना। पहली बात ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई। अब तीसरी बात, कितनी देर में टाइमिंग जो है इसको पोल को लाने की कितनी देर में मंगाया जाएगा। तो दो केसेस में तो इमीडिएट मंगाया जाएगा, यानी हम फोर्थ विद इसको कंप्लाई किया जाएगा। फोर्थ विद किस केस में, नंबर 1 केस और नंबर 2, अगर चेयरमैन की अपॉइंटमेंट के लिए पोल मंगाया जाता है चेयरमैन, तो उसको फोर्थ विद मंगाया जाएगा।
दूसरा, अगर एडजर्नमेंट ऑफ द मीटिंग के लिए मंगाया जाता है, एडजर्नमेंट ऑफ जनरल मीटिंग, ऑफ कोर्स क्योंकि हम जनरल मीटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, इससे रिलेटेड के लिए अगर पोल मंगाया जाता है कि, है ना, तो आपको इन दो केसेस में तो फोर्थ विद मंगाया जाएगा, अदरवाइज उस टाइम के अंदर पोल को मंगाया जाएगा जिस टाइम के अंदर चेयरमैन डायरेक्ट करता है, बट वो भी डायरेक्ट विदिन 48 आवर्स ही मंगाना होगा। यानी चेयरमैन चाहता है कि चलो कल मंगा लेना, 15 घंटे बाद मंगा लेना, 20 घंटे बाद, ठीक है, लेकिन आप 48 घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं दे सकते। यानी कि चेयरमैन के पास भी ये पावर नहीं है कि वो 48 घंटे से ज़्यादा का टाइम दे दे। समझ आ गई बात? ये तो इमीडिएट मंगाया जाएगा, लेकिन अदर केसेस में चेयरमैन के हिसाब से चीज़ें चलेंगी, बट वो भी 48 आवर से ज़्यादा का टाइम नहीं दे सकता। एक बात तो ये होगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, चेयरमैन के पास पावर है सीओ मोटो। अगर चेयरमैन चाहे, ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, ठीक है, जो बंदों को लगा, मेंबर्स को लगा, लेकिन चेयरमैन अगर चाहे तो वो सीयू मोटो भी पोल मंगा सकता है। सीयू मोटो मतलब खुद ही, सीयू मोटो भी वो क्या कर सकता है, खुद मंगा सकता है, उसको ये वाली कंडीशन कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है बेसिकली, ठीक है। ये वाली कब, अगर दूसरे के द्वारा डिमांड किया जा रहा है तब, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, चेयरमैन के पास पावर है ऑलमोस्ट सारी, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या हो गया, ये हमारा 109 हो गया। इसके अंदर स्क्रूटनाइजर अपॉइंट होते हैं। स्क्रूटनाइजर का मतलब जो उसकी कैरिंग आउट को सुपरवाइज करते हैं बेसिकली, और वो सारा भी जो कैरिंग आउट का रिजल्ट होता है वो बेसिकली चेयरमैन को बता दिया जाता है, एंड चेयरमैन देन फॉर्मली अनाउंस द रिजल्ट कि हाँ दिस इज द रिजल्ट फॉर दिस पर्टिकुलर रेजुलेशंस। सो आई होप यू गॉट इट। यानी कि डिमांड जो होगी वो फोर्थविथ की जाएगी अगर चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के लिए पोल मंगाया गया है तो, और एडजर्नमेंट ऑफ जनरल मीटिंग के लिए मंगाया गया है तो, बाकी मीटिंग्स के लिए और बाकी मैटर्स के लिए चेयरमैन की डिस्कशन पे डिपेंड करेगा कि कब मंगा रहा है, बट वो भी 48 आवर से ज़्यादा का टाइम नहीं दे सकता है, और बाई शो ऑफ हैंड के रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले मंगाया जा सकता है या फिर डिक्लेयर होने पर मंगाया जा सकता है। अगर किसी पर्सन ने यानी मेंबर ने डिमांड की है इसकी तो उसे 1/10 ऑफ वोटिंग राइट या फिर 5 लाख रुपए पेड अप कैपिटल का क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा हैविंग शेयर कैपिटल के अंदर, और अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो वहां पर सीधा 1/10 का वोटिंग राइट का क्राइटेरिया पूरा कर दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नाउ 1-1 खत्म हो गई, चलो कोई नहीं। तो आज तक हमने ये पढ़ लिया। अभी बस मैं एक बार एक लास्ट रिवीजन आपको कराता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा और सेक्शन कैसे हमने याद किए थे। तो गाइस हमने शुरू किया था 96 से, जैसे कि अगर आपको ध्यान होगा मैंने यहाँ पे आपको बताया है सारा, यहाँ पर ध्यान है आपको। तो हम कौन सा पोर्शन कर रहे हैं, ये वाला। तो हमने 96 पढ़ लिया, 96 से शुरू किया, 96 मतलब एजीएम हो गई हमारी। उसके बाद हमने अभी पढ़ा था 100 में हमने ईजीएम पढ़ी थी, ये आपको बता दिया मैंने इमरजेंसी नंबर के हिसाब से। 97 अगर आपने ये फॉलो नहीं किया तो आप ट्रिब्यूनल के पावर है, अगर मेंबर्स की मीटिंग नहीं बुलाई गई है तो ट्रिब्यूनल बुलाएगी जिसके अंदर 98 की पावर है, और आपने ये फॉलो नहीं किया, ये फॉलो नहीं किया, ये फॉलो नहीं किया तो इन सब में पेनल्टी दी गई है जो सेक्शन 99 के हिसाब से लगेगी। तो ये हमने पढ़ लिया 100 तक। उसके बाद हमने देखा था 101 में हमने नोटिस की बात करी थी, किस किसको भेजा जाएगा, क्या कंटेंट रहेगा, कितनी टाइमिंग में भेजा जाएगा, ठीक है। 102 में हमने पढ़े थे बिजनेस के बारे में, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ये पढ़ा था। फिर 103 में हमने क्या पढ़ा था, कोरम के बारे में पढ़ा था, कितनी कोरम किसके अंदर होनी चाहिए, याद है ना आपको, उसके 5, 15, 30। उसके बाद हमने 104 चेयरमैन के बारे में पढ़ा था, कैसे अपॉइंट होगा चेयरमैन, ठीक है, बाई शो ऑफ हैंड या पोल के थ्रू, कौन अपॉइंट होगा, कितनी देर में अपॉइंट होगा, ये सब हमने पढ़ा था। 105 के बारे में हमने प्रॉक्सी के बारे में डिटेल में पढ़ा था क्या होगा, ठीक है, नोट्स भी ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ इससे रिलेटेड। 106 आज ही पढ़ा हमने, रेस्ट्रिक्शंस, 2 ग्राउंड पे होगी रेस्ट्रिक्शंस, और एक्सप्रेस पावर दोगे आप आर्टिकल में तब होगी। 2 ग्राउंड कौन से थे, कॉल या अदर सम्स, अगर पेबल है शेयर होल्डर पे तो, या मेंबर पे तो, या फिर आपने कंपनी ने लेन जो है एक्सरसाइज कर रखा है शेयर्स पे तो। इसके अलावा कोई भी ग्राउंड जो है कंपनी प्रेस्क्राइब नहीं कर सकती जिसके बेसिस पे वो रेस्ट्रिक्ट कर दे वोटिंग राइट को शेयर होल्डर्स मेंबर्स के
107 बाई शो ऑफ हैंड हमने पढ़ा है, कई बार कर चुके हैं। 108 हमने वोटिंग बाई इलेक्ट्रॉनिक अभी छोड़ रखा है, हम बाद में पढ़ेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू, मीन्स के थ्रू वोटिंग कर रहे हैं। 109 पोल मंगाया जाएगा, ये भी हमने पढ़ लिया, कैसे मंगाया जाएगा पोल, कब मंगाया जाएगा पोल, ये हमने अभी सब कुछ डिस्कस किया है कि चेयरमैन की सुओ मोटो पावर है, मेंबर्स को मनाना है तो 1/10 जो है वोटिंग राइट होना चाहिए, या फिर 5 लाख की पेड शेयर कैपिटल उसकी होनी चाहिए। 2 केसेस में इमीडिएट मंगाया जाएगा, बाकी केसेस में चेयरमैन के डिस्कशन पे मंगाया जाएगा, लेकिन 48 आवर्स से ज़्यादा नहीं होगा। 2 केसेस कौन से, एडजर्नमेंट ऑफ द जनरल मीटिंग और अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, ये सब हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। अब 1-1-10 से हम जो है कल करेंगे, ठीक है गाइस। सो आज के लिए यही, पीछे का सारा रिवाइज करो और अगली क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश करने की पूरी कोशिश करेंगे, यानी कि कल, ठीक है। और कल ही मैं नोट्स भी प्रॉब्ली आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस चैप्टर के कंप्लीट। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।